کورونا نے مزید 48 زندگیاں نگلنی، اب تک 11,295 اموات، 24 گھنٹے کے دوران 1,594 نئے مریض۔ مہلک وائرس سے اب تک 5,32,412 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 34,628 ہو گئی۔ پنجاب اور اسلام آباد میں سی این جی اسٹیشنز کو سپلائی 27 روز بعد بحال، گیس کی فراہمی شام 6 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے جاری رہے گی۔ رسد میں بہتری پر گیس بحالی کا فیصلہ کیا گیا، سوئی ناردرن۔ بلاول بھٹو زرداری کی ان ہاؤس تبدیلی کی تجویز، پی ڈی ایم میں اختلافات، پیپلز پارٹی کے پاس عدم اعتماد کے لیے نمبرز ہیں تو پیش کریں، نون لیگ کا مطالبہ۔ مولانا فضل الرحمان سمیت 5 جماعتوں نے مخالفت کر دی۔ عدم اعتماد والی بات ٹھیک، بلاول بھٹو بالغ ہو چکے، شیخ رشید کی لاہور میں پریس کانفرنس، پرامن احتجاج میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ستم کرو گے تو ستم کریں گے۔ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے متعلق سوال پر جواب۔ مخالفین پہلے استعفے دے رہے تھے، پھر لانگ مارچ کی بڑھکیں لگائیں، اب عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، انہیں اپنی منزل کا ہی علم نہیں، حکومت گرانے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، شاہ محمود قریشی کی تنقید۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے اور اہم شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم، ٹریفک کی روانی میں تعطل، حکام کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دان اور میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ سب سے پہلے بات کریں گے، ملک بھر میں کورونا سے مزید 48 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ مہلک وائرس سے جاں بحق افراد کی کل تعداد 11,295 ہو گئی ہے، جبکہ 1,594 نئے مریض بھی سامنے آ گئے ہیں۔ جبکہ وبا سے متاثرہ 2,070 مریض ایسے ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا کی دوسری لہر جاری، مزید 48 افراد مہلک وائرس سے جاں بحق ہو گئی، اموات کی تعداد 11,295 ہو گئی۔ 1,594 افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد 5,32,412 ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز بھی 34,628 تک پہنچ گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ سینٹر آپریشن کے مطابق سندھ میں 2,40,570، خیبر پختونخوا میں 65,287، پنجاب میں 1,53,410، اسلام آباد میں 40,713، بلوچستان میں 18,736، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,795 کیسز رپورٹ ہوئے۔ گلگت بلتستان میں مریضوں کی کل تعداد 4,901 ہو گئی۔ مہلک وبا سے متاثر 2,070 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے یہ حکومت گراؤ مشن ہے، حکومت کو ہٹانے کے لیے لانگ مارچ کریں یا تحریک عدم اعتماد لائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی یہ تجویز تھی کہ ان ہاؤس تبدیلی لائے جائے، جس پر پی ڈی ایم میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ اگر بلاول کے پاس عدم اعتماد کے لیے نمبرز ہیں تو وہ پیش کرے۔ مولانا فضل الرحمان سمیت 5 جماعتوں نے اس کی مخالفت کر دی ہے، جبکہ 4 اپوزیشن رہنماؤں نے بلاول کی تجویز کی حمایت بھی کی ہے۔ اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے، ایک پیج پہ لے کر آئیں گے کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے۔ عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن اتحاد کی تحریک میں استعفوں کا آپشن پسے پش ڈال دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اتحادیوں کو عدم اعتماد کی تحریک لانے کی تجویز دے دی، پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب، پھر اسپیکر قومی اسمبلی اور آخری بار کے طور پہ وزیر اعظم کے خلاف۔
लॉन्ग मार्च की तैयारियों में मसरूफ पीडीएम की जमातों में बिलावल की तजवीज पर तकसीम नजर आई। मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली के बयान पर देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। नून लीग सेनेट में तादाद ज्यादा होने के बावजूद नाकामी को बुनियाद बनाकर अदम एतमाद के हक में नहीं, इन्हें लॉन्ग मार्च ही हुकूमत गिराने का तरीका दिखाई देता है। हम समझते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो ज़रूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। पीडीएम के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से वजाहत मांग ली। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, साजिद मीर, अब्दुल मालिक बलोच, अवैस अहमद नौरानी ने भी मुखालफत कर दी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अख्तर मैंगल और आफ्ताब शेरपाओ बिलावल भुट्टो की इन हाउस तब्दीली की तजवीज के हामी हैं। पीडीएम के अक्सर रहनुमाओं ने मामले पर गौर के लिए इजलास तलब करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। जिला इंतजामिया का जौहर टाउन में खोकर पैलेस में ऑपरेशन, 45 कनाल अराजी वागुजार कराने का टास्क, 13 दुकानें और आर्जी झोंपड़ियां मिसमार कर दी गई हैं, जबकि 177 कनाल में सिर्फ 131 सैफुल मुलूक की मलकियत है, बाकी अराजी पर कब्जा किया गया है। हुक्काम का ये मौक़िफ़ सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना मौजूद, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। लीगी MPA सैफुल मुलूक होकर का ऐसा बयान सामने आया है। इससे पहले भी दिसंबर में 19 दिसंबर को ये ऑपरेशन किया गया था, लेकिन LDA को नाकामी का सामना करना पड़ा था। अब मामला क्या है जान लेते हैं। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी, सुबह सवेरे ही मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कोकर पैलेस से मुल्हिका जो 3 घर हैं, उनके रिश्तेदारों के ही, उनके भतीजे भांजियों के ही, उन घरों को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। और अभी भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो मशीनरी है वो मुसलसल जो है वो उसको मस्मार करने की जो है वो कार्रवाई में जारी है। और इसके साथ साथ जो उसके साथ प्लाजा था, एक 2 मंजिला प्लाजा था, उसको भी मस्मार मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। और इस सिलसिले में सबसे जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि जिस ऑपरेशन की मुकम्मल तौर पर इसको ऑपरेशन को स्मूथ रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है कोकर पैलेस के अतराफ में। और जो सर्विस रोड है उसको भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कंटेनर्स लगा के किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को कदम भी नहीं रखने दिया जा रहा। सर्विस रोड पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर मौजूद है और उनकी निगरानी में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो मशीनरी है वो इस ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाने में लगी हुई है। और अभी भी बताया जा रहा है कि जी मजीद 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं इस ऑपरेशन की तकमील में। दूसरी जानिब पहले की तरह जैसे इससे पहले भी इस तरह का एक ऑपरेशन होने वाला था तो कोकर पैलेस की जानिब से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से एक मुज़ाहमत सामने आई थी देखने को। इस दफा हुआ कुछ ऐसे है कि जो सुबह सवेरे से ही ये कार्रवाई शुरू हुई, खुफिया रखा गया इस ऑपरेशन को और अभी तक किसी किस्म की कोकर पैलेस की जानिब से कोई मुज़ाहमत नहीं देखी जा रही। ऑपरेशन का जो काम है वो सुबह से ही बड़ी स्मूथ तरीके से चल रहा है। रात 2-3 बजे ही मुतल्लिका महकमों के अफसरान को, उनके एहलकारों को, अमले को अलर्ट जारी कर दिया गया था। हिदायत दे दी गई थी कि वो सुबह ही एक्सपो सेंटर में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। एक्सपो सेंटर में उन्होंने अपने अफसरान को हाजिरी यकीनी बनाई और उसके बाद फिर 5-6 बजे के करीब यहाँ पे पहुंचकर उन्होंने अपने ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। जी ठीक है सलमान, शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने PDM की जमातों को अदम तहरीक लाने का मशवरा दिया है, जिसे हुकूमती वज़रा ने आड़े हाथों लिया। शेख रशीद का कहना था ये इस्तीफे नहीं दे सकते, इसीलिए बिलावल की तजवीज़ दुरुस्त बात है, जबकि फिरदौस आशिक अबान ने कहा कि ये एक दूसरे को फरेब दे रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातों के लिए हुकूमत गिराने की तजवीज हुकूमती वज़रा ने खूब आड़े हाथों लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि बिलावल भुट्टो बालिग हो गए हैं, ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं दे सकी, इसलिए अदम एतमाद वाली बात ठीक की है। बिलावल भुट्टो बालिग हो गया है, बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा है, अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है और उसने कहा ये जलसों से तो कुछ नतीजा नहीं निकला। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अबान ने जेलों में मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऑपोजिशन का शोरगुल शुरू हुआ इस्तीफे की धमकी से, फिर लॉन्ग मार्च और अब इन हाउस तब्दीली आ गई। पर्ची वाला शहजादा भांप गया कि हुकूमत परेशान नहीं है। उन्होंने कहा अदम एतमाद के लिए पहले आपस में एतमाद पैदा करें, ये एक दूसरे को धोखा फरेब दे रहे हैं।
फवाद चौधरी का ट्वीट शामिल करते हैं। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, ना ही कोई प्लान है। इस्तीफों से शुरू होने वालों की बस हो गई है तो अब अदम एतमाद की गुफ्तगू शुरू कर दी है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है। फवाद चौधरी ने ऐसा ट्वीट किया है। फवाद चौधरी ये भी कहते हैं कि आप ताउम्र कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। फवाद चौधरी की जानिब से अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया गया है। ट्वीट में कहा कि अपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना ही कोई प्लान है। इस्तीफों से जिन्होंने बात शुरू की थी उनकी जब बस हो गई तो आप अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि आप ताउम्र कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा।